हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कुछ थ्योरम्स की थी वेक्टर सबस्पेसेस के ऊपर, और जो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम की थी वो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ऑलवेज ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस. टुडे we discuss about the union of the two subspaces. Here the theorem is the union of two subspaces is a subspace if and only if one of is की बजाय them लिखेंगे, one of them contained in another, यानी कि एक सबस्पेस दूसरे का सबसेट होना जरूरी है. If one of them is subset of other, then their union must be subspace of the vector space. Let us prove this theorem. Proof है, let W1 and W2 be two subspaces of a vector space VF. VF वेक्टर स्पेस का हमने ये सब स्पेस दो लिए हैं. लेट W1 is subset of W2, then we know that when one is subset of another, then their union W1 union W2 must be equal to W2. You know it. अब यूनियन जब W2 के बराबर होगी, अब W2 तो एक सबस्पेस है. Since W2 is a subspace and W2 is equal to their union, it means this implies W1 union W2 is also a subspace of vector space VF. Okay. Now let us suppose that again दूसरी साइड से यहाँ पे हमने लिया था W1 सबसेट ऑफ W2. नाउ वी टेक W2 is subset of W1, then we know that when one is a subset of another, then their union W1 union W2 is equal to W1. But again, W1 is the subspace of vector space V over field F. This implies their union W1 union to W2 is also a subspace of vector space over field F. दोनों ही केसेस में हमने लिया if one is the subset of another, if one is contained in another, then their union is a subspace of the vector space. Now conversely suppose that हम चेक करेंगे. लेट अस सपोज दैट हियर W1 union W2 is a subspace of vector space we have to prove that one of them is subset of another. तो क्या करेंगे to prove that either W1 is subset of W2 और W2 is subset of W1. ये हमें प्रूव करना है. If possible, let us suppose that neither of them, यानी कि ना तो ये इसका सबस्पेस है सबसेट है, ना ये इसका सबसेट है, हम ये कंसिडर करके चलेंगे. तो इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट नाइदर ऑफ देम, या ऐसे लिखेंगे W1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W2 and W2 is not a subset of W1. Now since W1 is not a subset of W2, this means there exists some element U belongs to W1 and that element U does not belongs to W2. Similarly,
W2 is not a subset of W1. This implies there exists some element V belongs to W2 and this V does not belongs to W1. From both conditions, if U belongs to W1, then U belongs to W1 union W2 and V belongs to W2 and therefore V also belongs to their union, because union में तो और वो सारे एलिमेंट होते हैं जो किसी एक में भी हों. This means U belongs to W1 union W2 as well as V belongs to their union W1 union W2. अब ये दोनों एलिमेंट इनकी यूनियन में है, बट या सिंस W1 यूनियन W2 यह तो हम कन्वर्सली में चेक लेके चले थे कि देयर यूनियन इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस और फील्ड F. This means this W1 union W2 is closed under addition. Therefore, sum of U and V belongs to W1 union W2. This means this U plus V either belongs to W1 or U plus V belongs to W2. यूनियन में है तो किसी एक में तो एग्जिस्ट होगा. If this U plus V belongs to W1 and W1 is a subspace and therefore additive inverse of every element exists in W1, and here since U belongs to W1, this means minus U also belongs to W1 and it is closed with respect to addition. It means U plus V plus minus U belongs to W1. U से U कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा V belongs to W1 which is a contradiction to the assumptions. हमने मान के चला था कि V does not belongs to W1, या तो V तो W1 का मेंबर हुआ, but therefore this is a contradiction, which is a contradiction. Again, if this U plus V, this element belongs to their union, U plus V हमने माना था कि either belongs to W1 or belongs to W2. हमने W1 वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया. Now let us take this U plus W belongs to W2, and again because this is a subspace and additive inverse of every element belongs to W2, therefore for V belongs to W2 minus V also belongs to W2. This means U plus V plus minus V belongs to W2. V से V कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? U belongs to W2. Again this is a contradiction, which is a contradiction, because we have taken that U does not a member of W2, लेकिन ये तो इसका member मिला. From both conditions, thus our assumption is wrong. And either W1 is a subset of W2 or W2 is a subset of W1. It means we can say that one must be contained in another. Understand? Arbitrary intersection पे भी आप ऐसे ही शो कर सकते हो कि arbitrary intersection of subspaces of a vector space VF need not be a subspace. Now we discuss some examples of this. इसके एग्जाम्पल्स में हम इस तरह से करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनको प्रूव करेंगे कि वेदर इट इज ए सबस्पेस और नॉट. जो एग्जाम्पल है कि वो है
लेट आर बी ए फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पे आर फील्ड है रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर दिस फील्ड आर। और उसके तीन पार्ट हमने लिए हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसके एलिमेंट है x 2y 3z, ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई जेड ये सारे के सारे रियल्स हैं। सेकंड पार्ट है x x x एंड दिस x बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये भी रियल नंबर है। और थर्ड पार्ट है x y z, और तीनों के तीनों पार्ट हैं वो 3 टपल्स के हैं, R3 की हम बात कर रहे हैं। बट द थर्ड पार्ट है इसमें एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट्स वो रैशनल नंबर्स है, दीज आर रैशनल नंबर्स। वी हैव टू प्रूव दैट विच वन ऑफ दीज 3 आर द सबस्पेसिस एंड विच आर नॉट। लेट अस प्रूव दिस। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें उसको हमने लिया, लेट अस सपोज दैट द W इज इक्वल टू x 2y 3z and x y z belongs to R. We have to show that whether it is subspace or not. You know that we in the theorems we prove that if AU plus BV टाइप का एलिमेंट किसी भी स्पेस के अंदर है तो उसको इट मीन्स उसको हम सब स्पेस हम बोल सकते हैं। उसको सबसेट के अंदर अगर कोई AU प्लस BV टाइप का एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है तो हम उसको सब स्पेस वहाँ पे प्रूव किया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक U और V इसके दो एलिमेंट लेंगे एंड AU प्लस BV टाइप का एलिमेंट भी अगर यहाँ पे इस के अंदर एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, तो वी कैन से दैट दिस इज अ सबस्पेस। फॉर दिस लेट U इज इक्वल टू x1 2y1 3z1, एक एलिमेंट तो हमने लिया, एंड V इज इक्वल टू x2 2y2 एंड 3z2। एलिमेंट्स हमने इसके अकॉर्डिंग ही लेने हैं, जैसे इनकी नेचर है उसी नेचर से हमने दो एलिमेंट लिए हैं। एंड लेट 2 एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर लिया। देन AU प्लस BV, ये एलिमेंट होगा A, U का जो वैल्यू है x1 2y1 3z1 प्लस B इंटू V, AU प्लस BV, V की वैल्यू x2 2y2 एंड 3z2, ये हमने लिया। दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई AX1, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 2AY1 3AZ1, सिमिलरली BX2 2BY2 एंड 3BZ2, ये एलिमेंट आए। अब एडिशन प्रॉपर्टी से इनको ऐड किया तो AX1 प्लस BX2, फर्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ, 2AY1 प्लस 2BY2, सिमिलरली थर्ड एलिमेंट 3AZ1 प्लस 3BZ2, ये एडिशन होने के बाद आया। और यू कैन से दिस इज इक्वल टू, हमने इनको कंसीडर कर लिया कि x डैश 2y डैश एंड 3z डैश, जिसमें AX1 BX2 2 कॉमन लेंगे तो AY1 BY2, 3 कॉमन लेंगे तो AZ1 एंड BZ2, उसी फॉर्म का ये एलिमेंट आया। अगेन वी कैन से दैट दिस बिलोंग्स टू W, अगेन इसका नेचर उसी तरह का है। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस W विद एलिमेंट x 2y 3z एंड x y z बिलोंग्स टू R इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर R। सेकंड पार्ट जो इसका है जो हमने किया था, वो सेकंड पार्ट क्या था, उसका जो नेचर था W इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स थे x x x सच दैट दिस x बिलोंग्स टू R। यहाँ पे भी वही फॉर्म हमें करनी है। उसके लिए फिर से आप सेम नेचर पे आप कर सकते हो कि U एक एलिमेंट लेंगे जिसके एलिमेंट होंगे x1 x1 x1, V दूसरा एलिमेंट लेंगे जिसके एलिमेंट होंगे x2 x2 x2। अगेन 2 एलिमेंट्स हमने कंसिडर करने हैं, A एंड B बिलोंग्स टू R, एंड वी चेक दैट AU प्लस BV either belongs to this W or not. On the same line as in the first part, we can prove this AU plus BV belongs to W, and we can say that W is subspace of vector space over R. थर्ड जो पार्ट है इसका वो थोड़ा सा चेंज है। थर्ड पार्ट में हमने W हमारे पास लिया, W इज इक्वल टू एलिमेंट जिसके हैं x y z,
यहाँ पे जो फील्ड था वो हमारा आर था, एंड जो एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैं ये दीज आर द मेंबर्स ऑफ रैशनल्स। रैशनल नंबर्स है तो एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, लेट अस सपोज दैट एन एलिमेंट u इज इक्वल टू 1 3 5। एक एलिमेंट दिस इज बिलोंग्स टू w, ये एलिमेंट हमने एक w का एलिमेंट लिया 1 3 5। दिस 1 3 5 आर रैशनल्स यू कैन से, एंड एन एलिमेंट a विच इज इक्वल टू √2 बिलोंग्स टू r, ये हमने r का एक मेंबर ले लिया। देन a u इज इक्वल टू a इंटू 1 3 5 विच इज इक्वल टू √2 इंटू √3 a की वैल्यू √2 है तो 3 एंड 5 ये हमारा एलिमेंट मिला। बट दिस एलिमेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ W बिकॉज W के अंदर तो सारे रैशनल नंबर्स थे, अब ये तो रैशनल नहीं बचाए थे, रैशनल आया विच एंड देयरफॉर इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Scalar multiplication and means W is not a subspace of vector space over R real numbers. Understand? Same अगर और भी आप एग्जांपल करना चाहते हैं तो एक और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया है कि जो वेक्टर स्पेस है वो R3 है। R3 मीन्स यूक्लिडियन 3 स्पेस है, एंड W जिसको हमें सब स्पेस प्रूव करना है, W इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ द मेंबर्स एक्स वाई जेड सच दैट AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू 0, यानी कि इनका तीनों का सम 0 आए, where these x y z's belongs to R and A B C being fixed real numbers। इस कंडीशंस के साथ ये 0 आ जाए। We have to show that this W is a subspace of V। इस स्टेटमेंट को आप दूसरी फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जो स्टेटमेंट हो सकती है कि सो दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ए सबस्पेस ऑफ R3। अब पासिंग थ्रू ओरिजिन क्यों बोला, बिकॉज दीज ABC आर फिक्स्ड रियल नंबर्स, तो ये इसकी डेफिनेशन दूसरी भी हो सकती है। फॉर दिस इसको प्रूफ के लिए लेट 2 एलिमेंट्स इसके लेंगे जो इसकी फॉर्म के होंगे। लेट U इज इक्वल टू एलिमेंट्स x1 y1 z1 एंड सेकेंड एलिमेंट V इज इक्वल टू x2 y2 z2। देन we know that this x1 y1 z1 as well x2 y2 z2 all belongs to R। then AU plus V टाइप का जो एलिमेंट हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं वो क्या होगा, अकॉर्डिंगली यहाँ कंडीशन भी क्या सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई ABC3 जो फिक्स मेंबर्स है उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि AX1 उसके अकॉर्डिंग प्लस BY1 प्लस CZ1 is equal to 0 as well as AX2 plus BY2 plus CZ2 this is also equal to 0 for this A B C belongs to R तो नहीं कह सकते हम, these are the fixed members again we can say that, but this x1 y1 z1 and x2 y2 z2 these are belongs to R accordingly। जैसे स्टेटमेंट में डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इस रियल्स के मेंबर होंगे एंड दिस ABC आर द फिक्स्ड नंबर्स। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस टाइप ऑफ एलिमेंट AU प्लस V की जो हम बात कर रहे थे वो होगा कि AU प्लस V इज इक्वल टू ए की बजाय ए तो हम पहले यूज कर चुके हैं, अल्फ़ा कर लेते हैं, ए तो इनके साथ एसोसिएट है पहले से ही, तो अल्फ़ा U प्लस V दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू x1 y1 z1 प्लस x2
y2, z2. This gives alpha x1, alpha y1, alpha z1 plus x2, y2, z2. On adding, we get alpha x1 plus x2, alpha y1 plus y2 and alpha z1 plus z2. ये इसके बराबर आ जाएगा, where this alpha x1, x2, alpha y1, y2 and alpha z1, z2 all belongs to R. Now, अब जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू शो दैट दिस एलिमेंट इनटू A plus this element into B plus this element into C, sum of all these values gives the value 0. For this, A into first element alpha x1 plus x2 plus B into alpha y1 plus y2 plus C into alpha z1 plus z2. This gives अल्फ़ा के साथ अंदर a मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, और अल्फ़ा साथ में कॉमन भी ले लेंगे. वी विल टेक अल्फ़ा कॉमन, अल्फ़ा इंटू ए x1 प्लस यहाँ से क्या आएगा बी वाई वन प्लस सी z1. थर्ड एलिमेंट अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद, और लास्ट में जो सेकंड पार्ट है वो क्या क्या बचेगा कि ए एक्स टू प्लस by2 plus cz2. अब अल्फा इंटू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2. ये तो पहले से जीरो थे, दिस पार्ट इज जीरो, दिस पार्ट इज जीरो, तो अल्फा इंटू जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, and property satisfied. And we can say that from both conditions this AU plus V belongs to W, and this is the property of subspace, and therefore W is the subspace of vector space V3 we can say. इसी लाइन पे आप और भी एग्जांपल्स ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज के भी कर सकते हो, तो आप इसको ट्राई करना. और जो बाकी के पार्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू.